رحمان خان ہمیں دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ کیسی مزے کی بات ہے میرے بھائیوں، تم لوگوں نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے، لیکن نہ تو میرے باپ کو اور نہ مجھے ابھی تک تمہارے بارے میں کچھ معلوم ہے۔ رحمان خان نے کہا۔ کیا معلوم کرنا چاہتے ہو رحمان خان؟ یہی کہ تمہارا تعلق کون سے علاقے سے ہے، گھر بار کہاں ہے، اور کیا تم ہمیں چھوڑ دو گے یا اب ہم بھائی ہوں گے؟ ہم لوگ آوارہ گرد ہیں رحمان خان، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ہماری دوستی ہم شکل ہونے کی وجہ سے ہوئی، لیکن اس کے بعد ہماری راہیں بھی ایک ہو گئیں۔ دلیر خان کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اس کے خیال میں دلیر خان کی عادات خراب ہو گئی تھیں۔ میرا باپ میری حرکتوں سے پریشان ہو کر میرے بچپن میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بس ہم دونوں یوں ہی آوارہ گردی کرتے پھرتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ مگر اب میں تمہارا باپ ہوں اور میں تمہیں آوارہ گردی نہیں کرنے دوں گا، شہباز خان نے کہا، اور ہم دونوں مسکرانے لگے۔ پھر میں نے دولت خان سے پوچھا، سرتاج خان کے بارے میں اب تمہارا کیا خیال ہے دولت خان؟ وہ میری اولاد ہے۔ مجھ جیسے گناہگار باپ کی ایسی ہی اولاد ہونی چاہیے۔ مجھے اس سے کیا شکایت ہو سکتی ہے؟ ہو سکے تو میری بیٹی کو وہاں سے نکال لاؤ، میں اس کا ہاتھ رحمان خان کے ہاتھ میں دے کر کوئی ویرانہ اپنا لوں گا اور باقی زندگی عبادت کروں گا۔ اب مجھے دنیا سے زیادہ عاقبت کی فکر ہے۔ طالوت نے میری طرف دیکھا اور ایک بار پھر ہم مشورہ کرنے باہر آ گئے۔ ٹھیک ہی ہے عارف، ہم سرتاج خان پر کیوں وقت برباد کریں؟ جیسا دولت خان کہتا ہے ویسا ہی کیا جائے، طالوت نے کہا اور پھر چونک پڑا۔ اس نے میرا شانہ دبایا اور میں نے بھی اس کے اشارے کی طرف دیکھا۔ بے شمار گھوڑے طوفانی رفتار سے دوڑتے اسی طرف آ رہے تھے اور ان کی قیادت منہ سے جھاگ اڑاتا ہوا سرتاج خان کر رہا تھا۔ ان کا رخ ہماری ہی طرف تھا۔ طالوت نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر میری طرف دیکھا۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز اتنی بلند تھی کہ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تب دولت خان کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات نظر آئے۔ وہ سرتاج خان کی طرف دیکھتا رہا جس نے ہم دونوں کو دیکھ لیا تھا، اور پھر اس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے میرے معبود، لیکن تو معاف کر دیتا ہے۔ مجھے کتنی بار شرمندہ ہونا پڑے گا؟ میری غیرت، میرا وقار اب کوئی نام نہیں رکھتا۔ پھر اس بے جان بدن پر بے غیرتی کے اور کتنے نشان بنیں گے؟ میری روح کچلی جا چکی ہے۔ اب مجھے صرف موت درکار ہے، صرف موت، صرف موت۔ دولت خان کی رگیں پھول گئیں، اس کا چہرہ انگارے کی مانند دہکنے لگا اور وہ سینہ تان کر آگے بڑھایا۔ سرتاج خان کے بے شمار ساتھی ہمارے چاروں طرف پھیل گئے تھے اور خود سرتاج خان اپنا گھوڑا سامنے لے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل دبی ہوئی تھی۔ دولت خان آہستہ آہستہ اس کے سامنے آ گیا۔ کیوں آیا ہے سرتاج خان؟ اس نے قہر و غضب میں ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہ دیکھنے دولت خان کہ تیرے جیسے بزدل انسان نے کہاں پناہ لی ہے۔ کیا پٹھانوں کی یہی ریت ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے پناہ کی بھیک مانگتے ہیں؟ سرتاج خان نے کہا۔ میں نہیں جانتا سرتاج خان کہ کیا میرا باپ بھی اتنا ہی بے غیرت تھا جتنا میں ہوں۔ افسوس مجھے اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے، لیکن حالات بتاتے ہیں کہ یقیناً وہ بھی میری طرح ظالم اور بے غیرت ہوگا، ورنہ اس کے نطفے سے دولت خان کیوں جنم لیتا؟ دولت خان کو اعتراف ہے سرتاج خان کہ اس جیسا ذلیل کمینہ فطرت انسان اس بستی میں دوسرا نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ ناقابل معافی ہے، لیکن میرے نطفے سے تجھ جیسے انسان نے جنم لے کر میرے گناہوں کی سزا پوری کر دی ہے۔ اس کے بعد کوئی اور سزا ایجاد نہ ہوئی ہوگی، اور اس کے بعد اگر مجھے کوئی سزا دی گئی تو میرا دل قبول نہیں کرے گا۔ میں اگر تیرے گناہوں کی سزا ہوں دولت خان تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لیکن بعض اوقات کسی ایک انسان کے گناہ کی سزا دوسروں کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ اپنے ساتھیوں کو یہ بات سمجھا دے۔ سرتاج خان نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ کیا چاہتا ہے؟ کیوں لے کر آیا ہے ان بزدلوں کو؟ دولت خان گرایا۔ میں تجھ سے رشتے ختم کر چکا ہوں دولت خان، اور تجھے معلوم ہے کہ تو نے میری راہ میں آنے کی کوشش کی ہے۔ اب تیرا شمار میرے دشمنوں میں ہے۔ تو نے میرے بدترین دشمن رحمان خان کو آزاد کیا ہے۔ اس کے بعد میرا فرض ہو گیا ہے کہ تجھے اور تیرے ساتھیوں کو قتل کر دوں۔ سرتاج خان نے وحشیانہ انداز میں کہا۔ کیا تو پٹھانوں کی کسی رسم کا قائل نہیں رہا سرتاج خان؟ کیا مطلب؟ اگر تو خود کو پٹھان کہتا ہے تو پھر پٹھانوں کی ایک رسم پوری کر۔ ہمارے قبیلے میں غالازی رائج ہے۔ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے زیادہ کشت و خون کی بجائے صرف دو دشمن آپس میں جنگ کر لیتے ہیں۔ میں تجھے غالازی کی دعوت دیتا ہوں۔ تو بوڑھا ہو گیا ہے دولت خان، اس کے علاوہ میرا دشمن صرف تو نہیں ہے، یہ سب میرے دشمن ہیں۔ میں ان سب کو قتل کرنے کا خواہش مند ہوں۔ اس کے لیے میں کیا کروں؟ اور دولت خان دانت پیس کر رہ گیا۔ بلا شبہ اس کے لیے کوئی رسم نہیں تھی،
क्या तुम्हारे यहाँ हारे हुए दुश्मन के लिए कोई सजा नहीं है सरताज खान? तुम बार बार मैदान छोड़कर भाग चुके हो। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि अब भी तुम्हारे साथ वही सलूक हो सकता है जो अब तक होता रहा है? इस बार तालूत ने पूछा। आज मैं तुम सबकी मौत बनकर आया हूं। सरताज खान गुर्राया और तालूत के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मुझे बताओ दौलत खान, मैं इस सरफिरे के साथ क्या सलूक करूं? उसने दौलत खान से पूछा। खुदा इसके साथ बुरा सलूक करे, अब मेरा इससे क्या ताल्लुक? दौलत खान ने मायूसी से कहा। आओ सरताज खान, बोलो क्या चाहते हो? आओ हमें गिरफ्तार कर लो, हमें गोली मार दो। तालूत ने कहा। इन सबको गिरफ्तार कर लो और एक चट्टान के साथ खड़ा करके गोली मार दो, सरताज खान ने कहा। और उसके साथी घोड़ों से उतर पड़े। खुद सरताज खान भी घोड़ों से उतर आया था, लेकिन जो ही वो घोड़ों से उतरे, ना जाने घोड़ों को क्या हो गया, वो बुरी तरह ही निहनाने लगे। तमाम घोड़े पिछले पैरों पर खड़े हो गए और फिर वो पलटकर बुरी तरह भाग निकले। बदहवासी की बात थी, सरताज खान के सारे साथी बेख्तियार घोड़ों को पकड़ने के लिए लपके। खुद सरताज खान कई कदम दौड़ गया था, लेकिन फिर वो रुक गया। उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल सका था। फिर वो झिल्लाए हुए अंदाज में वापस पलटा और उसने तालूत की तरफ शस्त्र बांधकर फायर किया, लेकिन राइफल खाली थी। तालूत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। फिर उसने सरताज खान की राइफल पकड़ ली। एक बार तो मर्दों की तरह लड़ लो सरताज खान, हसरत ही रहेगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और सरताज खान ने राइफल छोड़ दी। वो पागलों के से अंदाज में तालूत पर टूट पड़ा। उसने तालूत की कमर पकड़ ली थी और फिर वो तालूत के पांव जमीन से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। तालूत ने दोनों हाथ ऊपर उठा रखे थे, लेकिन सरताज खान का वास्ता तो किसी पथरीले सतून से पड़ा था। वो पूरी कुव्वत से उस सतून को हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सतून कहीं हिलते हैं? सरताज खान का जिस्म पसीना पसीना हो गया, लेकिन वो इंतहाई कोशिश के बावजूद तालूत का कुछ ना बिगाड़ सका। तब उसने तालूत के बदन पर घूंसे मारना शुरू कर दिए, और इससे भी कुछ ना बिगड़ा तो उसने गर्दन झुकाकर किसी अरने भैंसे की तरह उसके सीने पर टक्कर मारी। लेकिन सरताज खान के मुंह से निकलने वाली धाड़ बहुत तेज थी। उसकी पगड़ी खून से सुर्ख हो गई थी। उसने दोनों हाथों से सर पकड़ा और जमीन पर बैठ गया, लेकिन खून काफी मिकदार में निकल गया और मुसलसल बह रहा था, चुनाचे वो लंबा हो गया। दौलत खान के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन शहबाज खान आगे बढ़कर तालूत के बदन को टटोलने लगा था। रहमान खान भी आगे बढ़ाया था। तालूत मस्करी अंदाज में उछलने लगा। अरे अरे, वो उछल उछल कर कह रहा था, तुम मेरे गुदगुदी क्यों कर रहे हो? ओए दलेर खान, तू आखिर किस धात से बना हुआ है? शहबाज खान मुतहय्यराना लहजे में बोला। तो गुदगुदी क्यों कर रहे हो? तालूत उसी बेतुके अंदाज में उछलते हुए बोला। मुझे हंसी आ गई थी। क्या ये मर गया? दौलत खान की आवाज उभरी और हम सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। आओ चलें, गुलफिशां को निकाल लाएं। वो एक तरफ मुड़ गया। हम सब उसके पीछे पीछे चल पड़े। रास्ते में सरताज खान का एक भी साथी नजर न आया। शायद उन्होंने घोड़ों के पीछे ही पीछे भाग जाने में आफियत समझी थी। थोड़ी देर के बाद हम बस्ती में दाखिल हो गए। बस्ती के लोग शायद हकीकत से नावाकिफ थे। घर में गुलफिशां तन्हा थी। दौलत खान को देखकर वो उससे लिपट गई। आओ गुलफिशां, आओ, ये बस्ती अब हमारे रहने के काबिल नहीं रह गई। आओ, वरना लोग तुझे इसलिए हकारत से देखते रहेंगे कि तू बेगैरत दौलत खान की औलाद है। चल गुलफिशां, हमारा काफिला लुट चुका है। इज्जत, दौलत, गैरत, हमीयत अब हमारे पास कुछ नहीं है। चल गुलफिशां, इससे कबल कि लोगों को हमारे लुटने का एहसास हो जाए, हम यहां से निकल चलें। और गुलफिशां उसके साथ चल पड़ी। तब उसकी निगाह रहमान खान पर पड़ी और वह ठिठक गई। आजा गुलफिशां, शिकस्त के बहुत से निशान तुझे नजर आएंगे। उन निशानों पर ना ठिठक, ये तो अब जिंदगी के सारे रास्तों पर बिखरे पड़े हैं, हम इनसे कदम नहीं बचा सकते। दौलत खान उसका बाजू पकड़कर आगे बढ़ गया। हम सब उसके साथ थे। दोस्तों, इस हारे हुए जवारी के बारे में तुमने अब क्या फैसला किया है? बस्ती से काफी दूर निकलकर दौलत खान ने पूछा। मेरी तुझसे दुश्मनी खत्म हो गई है दौलत खान, अब तू मेरा भाई है। चल, यहां से जाकर मैंने अपनी एक छोटी सी कुटिया बना ली थी जो रहमान खान की मौत के बाद बेचिराग हो गई थी। आओ सब मिलकर उसे रोशन करेंगे। आओ दौलत खान। शहबाज खान ने दौलत खान का बाजू पकड़ते हुए कहा। उसने गुलफिशां के सर की ओढ़नी बराबर कर दी थी। दौलत खान शर्मिंदगी से सर झुकाए आगे बढ़ता रहा। तब हमने गारों के करीब से गुजरते हुए कुछ आवारा घोड़े देखे और तालूत एकदम रुक गया। घोड़े? वो आहिस्ता से बोला। हाँ घोड़े, मैंने भी बेसाख्ता कहा। हमें घोड़ों की जरूरत है।
अरे ये शायद सरताज खान के साथियों के घोड़े हैं जिन्हें वो पकड़ नहीं सके होंगे, शहबाज खान बेख्तियार बोला। मगर ये इसी तरफ आ रही हैं, रहमान खान ने कहा। पकड़ो, इन्हें पकड़ो। शहबाज खान खुद भी घोड़ों को पकड़ने के लिए दौड़ा। घोड़े पकड़ लिए गए और सबसे पहले गुलफिशां को एक घोड़े पर बिठाया गया। फिर सब लोग घोड़ों पर सवार हो गए और घोड़े चल पड़े। थोड़ी देर के बाद हम उधर से गुजरे जहां सरताज खान जख्मी हुआ था। दौलत खान ने उस तरफ से मुंह फेर लिया, लेकिन सरताज खान अब उस जगह मौजूद नहीं था जहां उसे छोड़ा था। अलबत्ता जमीन पर खून के धब्बे मौजूद थे और अचानक पहाड़ों में एक आवाज गूंजी, बाबा बाबा। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। दौलत खान एक लम्हे के लिए ठिठका, लेकिन फिर उसने घोड़ा आगे बढ़ा दिया। बाबा, मैंने तुम्हें देख लिया है बाबा, मैं जख्मी हूं, मैंने तुम्हें देख लिया है बाबा। सरताज खान हलक फाड़कर चीख रहा था। शहबाज खान ने घोड़ा रोक लिया। दौलत खान वो स्पार्ट लहजे में बोला, क्या बात है शहबाज खान? सरताज जख्मी है, उसे मरने दो शहबाज खान, उसे मरने दो। नहीं मेरे दोस्त, वो तुम्हारी औलाद है, उसे माफ कर दो, बच्चा है, जख्मी है, आओ हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं शहबाज खान, मेरे जख्मों को और न कुरीदो, वो हमारी औलाद है। दौलत खान, जाने भी दे यार, बच्चों से गलती हो ही जाती है, मेरा सीना औलाद के गम से आशना है। दौलत खान, चल मेरे यार, हम उसे ले आएं। बाबा बाबा, भैया। गुलफिशां दर्द भरे अंदाज में रो पड़ी। आओ दौलत खान, हम उसे ले आएं, शहबाज खान ने कहा और दौलत खान का बाजू पकड़कर आगे बढ़ने लगा। दौलत खान गर्दन झुकाए उसके साथ चल पड़ा। कहाँ हो सरताज खान? शहबाज खान चीखा। मैं इधर हूं, मैं। और फिर एक चट्टानी दो शाखे के नजदीक सरताज का बदन आहिस्ता आहिस्ता उभरा। उसका पूरा चेहरा खून में डूबा हुआ था। बमुश्किल तमाम सहारा लेकर वो चट्टानी दो शाखे में खड़ा हो सका, लेकिन उसकी हालत गैर मालूम होती थी। हम आ रहे हैं सरताज खान, हम आ रहे हैं। शहबाज खान दौलत खान का बाजू पकड़कर दौड़ने लगा और अचानक मैंने बिजली सी कौंधती देखी। सरताज खान जिस तरह निढाल होने की अदाकारी कर रहा था, दर हकीकत वो उस कदर निढाल ना था। शैतान नई कारगुजारी के लिए तैयार था। राइफल शायद उसने इस अंदाज से चट्टान से टिकाई थी कि उसे आसानी से उठा सके। उसने निहायत फुर्ती से राइफल उठाई और एक लम्हा जाया किए बगैर फायर कर दिया। गोली दौलत खान की पेशानी में सुराख करती हुई गुद्दी से निकल गई थी। दौलत खान के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली और फिर वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। शहबाज खान हक्का बक्का रह गया था। बचो शहबाज खान, तालूत चीखा, लेकिन सरताज दूसरा फायर कर चुका था। शहबाज खान के मुंह से एक करबनाक चीख निकली और वो भी जमीन पर आ रहा था। बाबा, गुलफिशां चीखी। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन रहमान खान ने उसे दबोच लिया और फिर वो उसे एक तरफ धकेलता हुआ आगे बढ़ा। और बुज़दिल और कुत्ते और खंजीर की औलाद, मैं आ रहा हूं, मैं तुझे कच्चा चबा लूंगा। आओ आओ बुज़दिल चूहे, तुम्हें भी तुम्हारे बाप के पास रवाना कर दूं। सरताज खान ने कहकहा लगाकर कहा और दूसरे लम्हे गोली रहमान खान के करीब से निकल गई। लेकिन उसी वक्त तालूत ने छलांग लगाई और रहमान खान को लिए हुए नीचे गिर पड़ा। सरताज खान का यह फायर भी खाली गया था। रहमान खान, तुम यहां रुको, मैं उस मरदूद को देखता हूं। नहीं, रहमान खान ने तालूत के शिकंजे से निकलने की कोशिश की। उसने मेरे बाप को कत्ल कर दिया है, मैं उससे इंतकाम लूंगा। वो मेरा भी बाप था। रुक जाओ रहमान खान, मेरी राह में मुश्किलात पैदा मत करो, तालूत ने कहा। नहीं नहीं, रहमान खान पागलों की तरह चीखा। बको मत। तालूत की गुर्राहट बहुत खौफनाक थी। उसने खूंखार निगाहों से रहमान खान को घूरा और रहमान खान किसी खौफजदा चूहे की तरह ठिठक गया। तब तालूत उसे छोड़कर आगे बढ़ा और सरताज खान ने मौके से पूरा फायदा उठाया। गोली तालूत के सीने से टकराई थी, लेकिन तालूत के कदमों में कोई लग्जिश ना हुई। वो आगे बढ़ा और सरताज खान बदहवासी में गोलियां चलाता रहा। फिर मैंने उसे चट्टान के अकब से निकलकर भागते हुए देखा। तालूत अब भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। ना जाने क्यों उस वक्त मुझे तालूत बेहद पुरस्कार मालूम हुआ। मेरे बदन में एक झिरझिरी सी आ गई थी। सरताज खान पूरी कुव्वत से भाग रहा था। अब वो नीचे एक वादी में दाखिल हो रहा था। शायद वहां से वो गारों में निकल जाना चाहता था। तब तालूत रुक गया। उसने एक हाथ बुलंद किया और सरताज खान रुक गया। ना जाने क्यों वो रुक कर तालूत की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे के तासुरात नजर नहीं आ रहे थे और फिर वो वापस आने लगा। तालूत किसी चट्टान की तरह अपनी जगह जमा खड़ा था
और सरताज खान मशीनी अंदाज में उसकी तरफ वापस आ रहा था। दूसरी तरफ अचानक शहबाज खान के बदन में हरकत हुई। रहमान खान उसके करीब पहुंच चुका था। मैं भी उसकी तरफ दौड़ा और गुलफिशा मेरे पीछे। खान बाबा, रहमान खान ने शहबाज खान को सहारा देते हुए कहा। कोई बात नहीं है रहमान ने, गोली मेरे बाजू के गोश्त से निकल गई है। शहबाज खान उसके सहारे से खड़ा होते हुए बोला। गुलफिशा दौलत खान की लाश से लिपटी हुई सिसकियां भर रही थी। तब शहबाज खान ने रहमान से कहा, इसे संभालो बेटे, बदनसीब लड़की। दूसरी तरफ सरताज खान वापस तालूत के सामने पहुंच चुका था। तालूत ने हाथ बढ़ाकर उसकी पेटी से पिस्तौल निकाल लिया और फिर वो उसके चैम्बर चेक करने लगा। पिस्तौल में कारतूस मौजूद थे। सरताज खान, तालूत की आवाज उभरी और फिर उसने पिस्तौल सरताज खान के हाथ में दे दिया। इसकी नाल कनपटी पर रखकर खुदकुशी कर लो। तुम इतने जलील हो कि मैं अपने हाथ से तुम्हें कत्ल भी नहीं करूंगा। सरताज खान ने पिस्तौल की नाल अपनी कनपटी पर रखी और फिर उसने ट्राइगर दबा दिया। उसके मुंह से आवाज भी न निकल सकी। हाँ, पिस्तौल की आवाज पर चौंक कर सबने उसकी तरफ देखा। सरताज खान किसी कटे हुए दरख्त की तरह नीचे गिर रहा था और तालूत वापस पहुंच गया। सुनो, उसने मेरी तरफ देखा। क्या बात है तालूत, मैं इस अलमिये पर रंजीदा हो गया था। दौलत खान की कब्र के लिए कोई मुनासिब जगह तलाश करो। हम उसे कब्र में उतारने के बाद जल्द अज जल्द यहाँ से रवाना हो जाना चाहते हैं। और फिर उसने गुलफिशा को देखा जो रोते रोते बेहोश हो गई थी। रहमान खान, उसने रहमान खान को मुखातिब किया। जी दलेर खान। रहमान खान जल्दी से आगे बढ़ाया। इसे संभालो, मैं खान बाबा का जख्म देखता हूं। तालूत ने शहबाज खान का हाथ पकड़ा और एक चट्टान की तरफ बढ़ गया। ओए दलेर खान, अब मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हूं कि इतने से जख्मों से घबराऊंगा, लेकिन दौलत खान की मौत का मुझे अफसोस है। उसे उसके गुनाह की सजा मिली है। फिर भी उसे ऐसे नहीं मरना चाहिए था। तुम तो उसके दुश्मन थे शहबाज खान। ओए, दुश्मनी तो खत्म हो गई थी, बुरा हुआ, जुल्म हुआ। शहबाज खान गमजदा लहजे में बुड़बुड़ाता रहा। दौलत खान की कब्र पर फातिहा पढ़कर हम वहां से चल पड़े। शहबाज खान की इजाजत से रहमान खान ने गुलफिशा को अपने घोड़े पर बिठा लिया। इस अजीब अलमिये से जहन पर बोझ था। बड़ी खामोशी से सफर हो रहा था। शाम ढल गई थी और एक जगह क्याम की ठहरी। रात के खाने वगैरह का इंतजाम किया गया। किसी से खाना नहीं खाया गया। गुलफिशा रह रहकर रोने लगती थी, लेकिन रहमान खान की मौजूदगी उसे ताकत देती। खाने से फारिग होकर मैं और तालूत चल पड़े। जी, तालूत ने सवालिया अंदाज में कहा। यार, अब रहमान खान के घर जाकर कुछ और दिक्कत अंगेज मनाजिर देखने में आएंगे। क्या मतलब? उसकी माँ, जाहिर है माँ को उसका वो बेटा मिलेगा जिसकी मौत पर वो आंसू बहाकर सब्र कर बैठी थी। ओह हाँ, ये तो है। फिर क्या ख्याल है? फरार? किस तरह? मेरा ख्याल है शहबाज खान से बात कर ली जाए। क्या बात करोगे? आओ, अब तो मुझे भी बात करनी आ गई है, तालूत ने कहा और मुझे साथ लेकर आगे बढ़ गया। शाहदाना का दोशाला उसने मेरे हाथ में दे दिया था। ना जाने उसके क्या इरादे थे। शहबाज खान, रहमान खान और गुलफिशा से काफी दूर बैठा जमीन कुरीद रहा था। वो किसी ख्याल में गुम था। शहबाज खान, तालूत ने संजीदगी से उसे आवाज दी। ओह आओ मेरे बच्चों, उसने बड़ी मोहब्बत से कहा और हम दोनों उसके पास बैठ गए। क्या बात है? उसने हम दोनों की शक्ल देखते हुए कहा। हम आपसे इजाजत तलब करने आए थे। तालूत बोला। क्या मतलब? हम अब जाना चाहते हैं। कहाँ? शहबाज खान, हमारा काम खत्म हो गया है। हमें इसी वक्त तक के लिए भेजा गया था। भेजा गया था? किसने भेजा था? शहबाज खान, तुम दाना इंसान हो। क्या तुम्हें हमारे अंदर कुछ अजीब बातें महसूस नहीं हुई? क्या मतलब? शहबाज खान चौंक पड़ा। इब्तदा उन दोनों घोड़ों के हसूल से हुई। बेशक उन घोड़ों पर सवारी आसान नहीं थी। फिर सरताज खान और उसके साथियों के उल्टे दौड़ने वाले घोड़े, उसके बाद की दूसरी नाकाबिले यकीन बातें। क्या ये सब तुम्हें अजीब नहीं महसूस हुई? हाँ, लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो? शहबाज खान की आवाज में अजीब सा तासुर था। यही कि हमारा मिशन पूरा हो गया है। हमें हुक्म मिला था कि तुम्हारी मदद करें, रहमान खान को तुमसे मिला दें और उसके बाद वापस आ जाएं। मगर आखिर तुम कौन हो? शहबाज खान की आवाज में लर्जिश थी। रहमान खान की शादी गुलफिशा से कर देना, उसे कोई तकलीफ ना हो। और देखो मैं कौन हूं। तालूत ने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया और दूसरे लम्हे वो निगाहों से गायब था। अरे अरे! शहबाज खान का मुंह हैरत से खुल गया
اور پھر اس نے خوفزدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ طالوت کی حرکت میں سمجھ گیا تھا، چنانچہ میں نے بھی شاہدانہ کا دوشالہ اوڑھ لیا، اور ظاہر ہے میں بھی شہباز خان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا ہوں گا۔ لیکن اب ہم دونوں اسے بخوبی دیکھ رہے تھے۔ شہباز خان پاگلوں کی طرح منہ کھولے کھڑا تھا، اور پھر وہ چیختا ہوا رحمان خان کی طرف دوڑا۔ رحمان خان، رحمان نے آؤ دیکھیں کیا رد عمل ہے، طالوت نے کہا، اور ہم دونوں بھی اس طرف چل پڑے۔ شہباز خان شاید رحمان خان کو تفصیل بتا رہا تھا۔ رحمان اور گلفشاں بھی سخت حیران تھے۔ میں گناہ گار انسان ہوں میرے معبود، تو نے میری کون سی بات پسند کر لی؟ میرے پاک بے نیاز رب، میں تو ایک گناہ گار انسان ہوں، شہباز خان کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے جائے نماز بچھائی اور سجدہ ریز ہو گیا۔ آؤ بات بن گئی، طالوت نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم تو گناہ گار ہو گئے طالوت، اس نے ہمیں فرشتہ سمجھا۔ خدا ہمارا گناہ معاف کر دے گا، ہم مجبور تھے۔ مگر اب کیا کیا جائے؟ میں نے پوچھا۔ ابے یہاں سے تو نکلو، اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کیا کیا جائے۔ گھوڑے، میں نے کہا، جہنم میں جائیں۔ طالوت نے میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا، اور میں مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ یہ شخص جس جگہ سے بیزار ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے۔